Assalamu alaikum. I am Bakhtavar, your English teacher for class 4. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today the topic that we are going to discuss is a poem, Sunning, page number 88. I have written some specific themes over here, line by line in a sequence way. But first of all, we are going to read the poem first and then we will elaborate all these points one by one. Page number 88, Sunning. We have got some words to know. The first word is buzz, that means sound made by a flying insect. जैसे आपने देखा होगा मच्छर, मक्खी, कुछ इस तरह ये जो साउंड क्रिएट करते हैं उसको बज़ कहते हैं. डोज, sleep lightly for a short time or if you are taking nap. Force of habit, done without thinking. Itch, to have a tickling feeling. Porch, a roofed place outside the entrance. Scratch, first इसका एक तो ये है कि to mark with something sharp or to rub where it itches. Ab they have given us two different points, number 1 and number 2. What does that mean? Why are these 2 points for a single meaning? इसमें ये है कि these are the synonyms of scratch. In any language there can be scratch. Scratch has got 2 different meanings over here, and what does that mean? Why does this singular word have 2 different meanings? It is for a reason that in any language you can have multiple meanings of a single word which are known as synonyms. एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं जिनको हम सिनोनिम्स कहते हैं. और इसमें है जी स्क्रैच, एक तो उन्होंने लिखा है टू मार्क विद समथिंग शार्प, किसी चीज़ के साथ निशान लगाना. एंड द सेकंड वर्ड इज़ टू रब वेयर इट इचेस, या फिर इचिंग करना जहाँ पे आपको इचिंग फील हो रही हो. देन वी हैव गॉट विम्पर, टू क्राई सॉफ्टली. देन विंक, टू क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली. अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Old dog lay in the summer sun, much too lazy to rise and run. अब ये जो आपकी पोएम है, it is basically about a dog who is now old and he is not interested into running or chasing things or even playing with his own self. वो क्या करता है जी, एक old dog है और वो summer sun के नीचे सोना पसंद करता है. वो वहाँ पे उसको नहीं होता कि वो इधर उधर like he doesn't seem to be provoked by different animals like rabbits or even mouse etc. कि उनके पीछे भागे, उनको चेज करे. Old dog lay in the summer sun, much too lazy to rise and run. He flapped an ear at a buzzing fly. अब वो जब सो रहा था सूरज के नीचे गर्मियों में, तो उसके कान के पास एक मक्खी घूम रही थी. उसने उसकी बजिंग की आवाज़ सुन के अपना एक कान उठाया. He winked a half opened eye, sleepy eye. उसने अपनी एक आंख थोड़ी सी खोली जो कि नींद से भरी हुई थी, देखने के लिए कि क्या चीज़ है जो उसको तंग कर रही है. He scratched himself on an itching spot. फिर जहाँ पे उसको इचिंग हो रही थी उसने वहाँ पे क्या किया, अपने आप को थोड़ी खारिश की, वहाँ पे अपने आप को इचिंग की. As he dozed on the porch where the sun was hot. Porch हमने क्या इसका वर्ड पढ़ा था, ये एक बाहर जगह है जहाँ पे डॉग सोया हुआ है. A roofed place outside the entrance. घर की या किसी बाग की या किसी चीज़ की एंट्रेंस के बाहर जो है एक रूफ टॉप जगह है जहाँ पे ये सूरज की रोशनी में सो रहा है. As he dozed on the porch where the sun was hot, और वो ऐसी जगह पे चुन के सोया था जहाँ पे सूरज की गर्मी बहुत अच्छी तरह पहुँचती थी. He whimpered a bit from force of habit while he lazily dreamed. अब वो क्या करता है कि उसको होता है कि मुझे मतलब कि जो कोई फ्लाई है या क्या मॉस्किटो है वो उसको वहाँ तंग कर रहा है और उस पर वो थोड़ा सा कराहता है. हालांकि हमने विम्पर का मतलब ऊपर क्या पढ़ा था, टू क्राई सॉफ्टली, आराम आराम से रोना, लेकिन ये उस तरह से ही इज़ नॉट क्राई विद हिज टीयर्स इन हिज आइज. अपार्ट फ्रॉम दिस उसको जो है थोड़ा फील हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मतलब मेरी नींद को डिस्टर्ब किया जा रहा है. फोर्स ऑफ हैबिट डन विदाउट थिंकिंग. उसको इस चीज़ पे गुस्सा आता है, इस चीज़ पे रोना आता है कि अभी वो उसने ख्वाब देखने शुरू किए ही थे, अभी उसने ड्रीमिंग शुरू की ही थी जो कि डे ड्रीमिंग हम कहेंगे इसको. और इतने में क्या होता है जी, उसको कोई ना कोई चीज़ आके इरिटेट करने लग जाती है. While he lazily dreamed of chasing a rabbit. और वो सोते हुए किसके ख्वाब देख रहा होता है, वो सोते हुए ख्वाब इस तरह के देखता है कि he is probably chasing a rabbit, कि वो एक खरगोश का पीछा कर रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है. बट ओल्ड डॉग हैप्पीली ले इन द सन. लेकिन ये होता है कि वो जो ओल्ड डॉग है वो अब क्योंकि अपनी ज़िंदगी गुजार चुका है, वो थक चुका है, वो बहुत खुशी से सूरज की रोशनी में लेटता है. मच टू लेजी टू राइज एंड रन.
और वो इतनी बॉदरेशन उसको नहीं होती कि वो चीज़ों के पीछे भागे, और उस तरह से वो उस एक्टिव नहीं है, उस तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं देता, उसके रिफ्लेक्स एक्शन इतने तेज़ नहीं है जैसे एक जवान जानवर के होते हैं। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रीम करता है और वो अपने ख्वाब में बहुत सारी चीज़ों को चेज़ करता रहता है। अबाउट द पोइट जेम्स स्टर्लिंग 1885 टू 1958, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके डेट ऑफ डेथ तक लिखा होता है। वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर। अमेरिका में एजुकेशन सिस्टम में उसका जो था अबूर था, वो वहाँ के बहुत सारे कामों को डील करता था, देखता था, और स्पेशली जो चिल्ड्रन थे वो उनसे रिगार्डिंग चीज़ें लिखता था, पॉइंट्स लिखता था। एजुकेशन में किस तरह से बच्चों को सहूलत मुहैया की जा सकती है, उनके लेवल पे, उनके स्टैंडर्ड पे आके वो इसके बारे में काफ़ी तजावीज़ पेश करता था। ऑलराइट, सो वी हैव रेड अ वेरी नाइस पोएम। आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ओवर हियर। द फर्स्ट वाज, इट वाज अ पोएम अबाउट अ डॉग हु वाज ओल्ड एंड लेजी। ही स्लीप्स ऑल समर नून्स। और वो क्या करता है, वो किस चीज़ को प्रेफर करता है, टू स्लीप इन समर नून्स अंडर द सनलाइट। He dreams about chasing rabbits, and in his dreams he is always working. He is always working very hard to chase rabbits and like grab different things. But he is old and happily lay in the sun. लेकिन होता क्या है कि वो अपने ख्वाब में ही बस ये चीज़ें कर रहा होता है, जबकि there is the fact that he is quite old now and like he doesn't have so much energy to act like a very normal or very young animal. तो वो क्या करता है, वो ख्वाब में ही keeps chasing different rabbits, और जब उसको कोई चीज़ तंग करती है, इरिटेट करती है, तो he whimpered a bit, और उसको होता है कि अभी तो मैंने ख्वाब देखना शुरू किया था और मुझे फ़ौरन कोई चीज़ तंग करने आ गई है। So that was all about our poem. I hope you have got all the points and all the themes that I have written over here. If you have any query, you can talk to your in charge at any time. Thank you.